بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 24 مئی 2001 کو PK-661 فوکر طیارے کو ایک چترالی نوجوان نے تباہی سے بچایا تھا۔ چترال ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے بعد یعنی ٹیک آف کے کچھ ہی دیر بعد جہاز کا ایمرجنسی گیٹ ٹوٹ کر مسافروں پہ آ گرا۔ اس کہانی کی پوری تفصیل آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھے ہمارے اس چینل RJ اشرف حسین کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جی دوستو، چترالی نوجوان بشیر احمد نے فوکر طیارے کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ PK-661 کا ہنگامی دروازہ چترال سے پرواز کے فوراً بعد ٹوٹ کر جہاز کے اندر آ گرا۔ جہاز ہچکولے کھانے لگا، مسافر بے ہوش ہو گئے۔ بشیر احمد نے ہمت کر کے دروازے کو تھام لیا۔ جی جناب، آج سے 21 سال پہلے چترال کے باہمت نوجوان نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر PIA فوکر طیارہ، عملے کے افراد اور 44 مسافروں کو تباہی سے بچا لیا۔ نوجوان بشیر احمد عینی شاہد اور روزنامہ آج اخبار بدھ مئی 2001 کے واقعے کے ذکر کے مطابق بشیر احمد 24 مئی کو پیٹ کی تکلیف کی شکایت کے پیش نظر علاج کے لیے پشاور جا رہا تھا۔ PIA کی فوکر پرواز PK-661 صبح 7:30 بجے جب چترال کے ہوائی اڈے سے ٹیک آف کیا تو اچانک ڈی نشست کے ساتھ جہاز کا ہنگامی دروازہ ٹوٹ کر مسافروں پہ آ گرا، جس سے 4 مسافر بے ہوش ہو گئے۔ تیز ہوا اندر آنے کی وجہ سے جہاز کا توازن بھی بگڑنے لگا تو بشیر احمد اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں پہنچے اور ٹوٹے ہوئے دروازے کو اپنی جگہ لگانے کی 2-3 بار کوشش کی، مگر ہوا کے جھٹکوں نے ان کی کوشش ناکام بنا دی۔ بشیر احمد کے مطابق انہوں نے چوتھی بار اللہ کا نام لے کر پوری طاقت سے دروازے کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا اور پھر بازو اور کندھے کے سہارے سے دروازے کو پکڑے رہا۔ اس دوران جہاز کی ایئر ہوسٹس نے بھی ان کی مدد کی، جبکہ کیپٹن نے مسافروں کو تسلی اور حوصلہ دیتا رہا۔ جہاز کے کپتان نے بتایا کہ کم اونچائی میں جہاز موڑ کر دوبارہ چترال ایئرپورٹ پر اتارنا ناممکن تھا، اسی لیے وہ پشاور ہی جائیں گے۔ بشیر احمد نے 40 منٹ تک ٹوٹے ہوئے ہنگامی دروازے کو پکڑے رکھا، یہاں تک کہ فوکر طیارہ بحفاظت پشاور کے ہوائی اڈے پہ اتر گیا۔ اس بے مثال شجاعت طیارہ اور اس میں موجود عملہ اور مسافروں کی جان بچانے پر جہاز میں سوار ہر فرد نے بشیر کو خراج تحسین پیش کیا، اور PIA والوں کے مطابق ہنگامی دروازہ ٹوٹنے کا واقعہ فنی خرابی کی وجہ سے رونما ہوا تھا۔ آج 21 سالوں بعد اس دلیر نوجوان سے ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں۔ درودات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے یہاں پہ بشیر احمد صاحب کو، تو سیو کیا جہاز کو، ایک خطرناک حادثے سے انہوں نے بچایا، تو آج وہ اپنی زبانی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ تو بشیر صاحب، آپ تیار ہیں؟ چلیں جی، چائے پیتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں 2001 کی جانب، ماضی میں چلتے ہیں، اور ماضی میں ہوا کیا تھا۔ 2001 کو ہوا کیا تھا جب فوکر طیارہ چترال ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرنے کے بعد پشاور کی طرف اڑان بھری تھی، اس کے بعد کیا لمحہ، کیا واقعہ پیش آیا تھا، وہ واقعہ اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ بشیر صاحب ادھر بیٹھے تھے، جہاز کے اندر موجود کے ساتھ تقریباً بشمول جہاز کے عملے کے ساتھ 48 افراد سوار تھے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو ہی یہ ایمرجنسی گیٹ کھل گیا، ٹیک آؤٹ کرنے کے بعد 2-3 منٹ نہیں ہوتا ہے، یک دم ایمرجنسی جو گیٹ ہے، ایمرجنسی گیٹ، یہ وہاں سے اپنے جگہ سے نکل کر اندر گھسایا۔ ایمرجنسی گیٹ کھل گیا، یہ ایمرجنسی جو گیٹ ہے یہ نکل کر اندر آیا گیا، ادھر آیا تھا۔ اچھا، یہ گر پڑا؟ ہاں، ادھر گر پڑا۔ آواز آئی؟ ہاں بالکل آواز آئی، تو میں نے اقبال بھائی کو بولا کہ بھائی اقبال بھائی، ابھی یہ جہاز کا جو گیٹ ہے وہ ایمرجنسی گیٹ یہ نکل کر اندر گھسایا، تو ابھی اس کو بچانے کا ٹائم ہے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے، وہاں جائیں گے، جہاز کو وہ سنبھالنے کی کوشش کریں گے، اگر بچ گیا تو بچ گیا، اگر نہیں ہو بس خدا کو حوالہ۔ تو پھر میں نے یہاں پہنچا، یہاں آ کے میں نے یہ گیٹ کو ایسا پکڑا، تو میں یہاں سے پکڑ کے تو یہاں لگانے کی میں نے کوشش کی، یہاں بہت تیز ہوا چل رہا تھا، انہوں نے مجھے واپس پیچھے دھکیل دیا،
दिखा दिया, मैं वहाँ यहाँ गिर गया, वापस इधर लगाने की कोशिश की, यहाँ बहुत तेज़ आवाज़ था। उसके बाद वापस मैंने लगाने की कोशिश की, फिर भी नहीं हुआ। और तीसरे मरतबा मैंने अल्लाह से दरख्वास्त की, मैंने बोला कि अल्लाह ताला, एक बार मैंने लगाया नहीं हुआ, दूसरा बार लगाया नहीं हुआ, या तीसरे बार मैं आपका नाम लेकर फिर लगाने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह आप हमारे साथ मदद करें, हमारी मदद करें। तो फिर मैंने इधर ऐसा पकड़ कर इधर बहुत ज़ोर से मैंने ऐसा लगा दिया इधर। जब लगाया मैंने उसको बस ऐसे ही पकड़ के ऐसा पकड़ के मैंने उसको बस शावर तक आप बैठे रहे। हाँ बैठे रहे। तो जब मैंने नहीं आगे जब हम पहुंचा तो मैंने एयरहोस्टेस साहिबा को बोला कि साहिबा आप ऐसा करें, पायलट साहब को बोलो कि जहाज़ वापस ले आए, हाँ चतराल की तरफ वापस मोड़ दे, क्योंकि ये बहुत ज़ोर लगाता है हवा, ये वापस ना निकले। अगर हवा अंदर आ जाती तो खुदा न खास्ता तो हादसे का शिकार। बिल्कुल हादसा 100%। तो इस बात से ज़ाहिर होता है ना, मैंने जब पायलट साहब को बेहन के ज़रिए जब मैंने पैगाम भेजा कि जहाज़ को वापस मोड़ दें, तो वो वहाँ जाके वापस आया, उन्होंने कहा कि अभी वापस मोड़ देना ये 100% हमारे लिए ख़तरे से खाली नहीं है, अब जाए और कोई कपड़ा ले आओ। उन्होंने बोला कि और कपड़ा नहीं है, यहाँ पर्दा लगा हुआ था, मैंने हाँ कर दिया, मैंने वो फाड़ दिया, वो खिड़की का वो जो कपड़ा वो फाड़ के मैंने वापस उधर मैंने उसको लगा के इसको पकड़ के मैंने ज़ोर से यहाँ बैठा रहा। पीछे करके मैंने लोगों को देखा, आगे करके देखा, मैंने बोला कि कोई लोग पैसेंजर बैठा हुआ था, तो एक बंदे का भी सर नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल खामोश। तो जो हमारे एयरहोस्टेस साहिबा है वो गेट के साथ बैठा हुआ था सर पकड़ के, वो दूसरा जो हमारा एयरहोस्टेस साहिबा था वो उधर ही सर पकड़ कर उधर बैठा था। तो मैं बहुत कोशिश की इधर उधर, मैंने बोला कि कोई हमारे साथ मदद करे, हमारे साथ आए, तो बस सब के सब बेहोश हो गया था। जी के ब्रा जी बिल्कुल अच्छा तज़माना लका नंबर शिराई 44 दी कलकियो साइट आस्ता हूँ नो से है कलकियो साइट इकबाल भाई इस पर क्या कि पीआईओ चौक का मेडिकल वाला इस पर बरारा सो इकबाल ऐसे कलकियो साइट जी दोस्तों 24 मार्च 2001 को जो फोकर तैयारे को हादसा पेश आने वाला था और हादसे से बाल बच गया। जिस तरह मैंने जिक्र किया, चित्राल के नौजवान बशीर अहमद साहब ने जवान मर्दी का मुजाहिरा और फुर्ती का मुजाहिरा करके जहाज़ को एक बड़े हादसे से बचाया। तो उस वक्त उस जहाज़ में भी इकबाल अहमद शाह साहब भी सवार थे, ऐनी शाहिद है, सब कुछ अपने आँखों से देख चुके हैं। वो हमारे साथ वो रुदात बयान करेंगे जो इनके आँखों के सामने वो मंज़र गुज़र गया है। तो जनाब मैं इकबाल अहमद शाह साहब से पूछना चाहूँगा, सर आप हमें ये बताएं कि उस जहाज़ में आप भी सवार थे 2001 को, 24 मई 2001 को आपके साथ क्या वाक़या पेश आया? 24 मई 2021 का दिन था। मुझे किसी काम के सिलसिले में पेशावर जाना पड़ा। उस रोज़ मैं एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट में बशीर भाई से मेरी मुलाकात हुई, फिर जहाज़ में चला गया। अच्छा, तो जहाज़ 1, 2, 3 नंबर में उड़ान करना था, वो जहाज़ 1 नंबर में उड़ान किया। अच्छा, तो बशीर भाई ने मुझे बता दिया कि यार ये 1 नंबर में ही उड़ान किया। तो मैंने कहा यार पता नहीं, मैं भी देखा 1 नंबर में उड़ान किया। तो उस उड़ान के 5-10 सेकेंड बाद उसका जहाज़ के में आवाज़ बहुत ख़राब आवाज़ आ गई। अच्छा, फिर ये चीना नहीं है बलच के, उसमें आकर उसका गेट निकल गया, इमरजेंसी गेट। अच्छा, जब गेट खुल गया तो उसमें इतना ज़ोरदार हवा अंदर आया कि मेरे कान में लग के वो हो गया, खून निकल गया। जब वो बशीर भाई ने अपने जवानमर्दी से अपने होश व हवास से उस गेट को उस तरह लगा के टेक लगाया कि वो जहाज़ काबू पे रह गया। अच्छा, फिर ने वो टेक लगा दिया। फिर वो एयरहोस्टेस वालों को बता दिया कि कुछ चीज़ें ले आओ, ये हवा अंदर आ रही है, उसको बंद करेंगे। उस वक्त मुसाफिरों को पता चल गया था? मुसाफिरों को पता चल गया था। सारे मुसाफिर उस वक्त बेहोश हो गए थे। अच्छा, बेहोश हो गए? बेहोश हो गए थे सिवाय बशीर के। मेरा भी होश
अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ कुछ ख़राब होता चला आ रहा था। अच्छा अच्छा, बस अल्लाह ने करम की, फिर बशीर साहब ने वो चीज़ें मंगवा लिया, वो तकिया नुमा छोटे छोटे चीज़ें थी, अच्छा अच्छा वो गेट के इर्द गिर्द लगा दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, लगा कर फिर हवा को बंद कर दिया। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चले गया। फिर बशीर भाई ने कह दिया, पायलट साहब को बता दिया कि दूसरे लोगों के ज़रिए कि हमें दोबारा वापस चित्राल एयरपोर्ट पहुंचा दें, लैंड करें। तो पायलट की तरफ से पैगाम आया कि चित्राल जाना हमारे लिए 99% डेंजरस, इसलिए हमको पेशावर जाना पड़ेगा। इस बार मेरा भी होश चला गया, अच्छा हाँ मैं बेहोश हो गया। फिर पेशावर एयरपोर्ट पहुंचकर फिर उसने मुझे होश पे लाया बशीर साहब ने। अच्छा, फिर लोगों ने उधर जहाज़ हम जब उतर गया, लोगों का रश इतना ज़्यादा था कि हमारे पसीने चल गया था। बिल्कुल बिल्कुल पता चल गया था, सारे मीडिया वाले भी आए हुए थे, ये हमें उसको लेके कसाखानी की तरफ आ गए। तो अच्छा, आप बशीर साहब बशमोल जहाज़ अमला यानी कि आप मौत को बहुत करीब से देख चुके करीब से देख चुके थे, बिल्कुल करीब से। तो तकरीबन 21 साल गुजर गए, हाँ वो मंजर अब भी आपके जहन की स्क्रीन पे नमदार होता है कि नहीं? बिल्कुल नमदार होता है। तो जहाज़ की जो उसने नहीं हो गया हिला इस तरह, हाँ हाँ हाँ, वो अभी भी मुझे याद आता है। अच्छा, मुझे अच्छा, होले खाना शुरू किया? हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल अभी भी याद है? अभी भी याद है, बहुत ज़्यादा याद है। फिर फिर उसके बाद आपने सफ़र किया दोबारा उस फोकर तैयारी में? मैं नहीं किया हूँ मैं फोकर तैयारी में फिर नहीं किया हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। भाई एक वो हमारा काबुल वाला एक भाई था, उन्होंने मुझे वो बास तक हमारे साथ आया, तो वहाँ ने के अखबार वाला आया नवाई वक्त का, तो उन्होंने हमसे बहुत कोशिश की पूछने की कि क्या वाक़यात हुआ, क्या क्या सिलसिला। मैंने बोला कि यार कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था, बस मैं बोला कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से इधर पहुंचा। तो उन्होंने बोला कि नहीं कुछ तो बोला। मैंने बोला कि नहीं कुछ भी नहीं। जब वहाँ से हम निकला तो होटल की तरफ, जो दो दोस्त इकबाल भाई और काबुल वाला भाई जो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल के जहाज़ का वो करे संभाले। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। तो धीरे से जब नीचे हम गए तो हमारा मकसद यही था कि अगर हम ये रौले टॉप हम अगर क्रॉस करें तो पायलट साहब हमारा कोई सवाद या कोई दूसरा मोटरवे में हमें उतारेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, तो इतना कोई मसला नहीं बना। तो मैंने वो बहन साहिबा को बोला कि आप मेहरबानी करके वो करें, पायलट साहब को कहे कि ये जहाज़ कुछ वो कर रहा है ज़्यादा, क्या हिल रहा है, कि कोई वो उसमें कोई वो लचक ज़्यादा पैदा ना हो जाए, ऐसा उसको वो करे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई। वो वापस चले गया। वापस जाने के बाद उन्होंने एक कोक ले आया मेरे लिए। उन्होंने कहा कि भाईजान ये कोक पिए। मैंने बोला कि बहुत मेहरबानी, शुक्र है। मुझे कोक पीने के बाद में जब हम पेशावर पहुंचने वाला था, कोई 10-15 मिनट रह गया था, तो वो वापस आया। उन्होंने आकर मुझे पकड़ा, फिर कंधे में पकड़ा। उन्होंने बोला कि भाई अभी ये जहाज़ उतरने वाला है, ये गेट फिर दोबारा निकलेगा, तो हम भी आपके साथ वो करेंगे, हेल्प करते। तो मैंने उसको बोला कि बहन जी आप मेहरबानी करें, आप इधर ही बैठे हमारे साथ, बस कुर्सी में बैठे, मेहरबानी जब ज़रूरत पड़े तो आप हमारे साथ वो करें, मदद करें। तो खैरियत से पेशावर एयरपोर्ट में बस लैंड किया। कि उस वक़्त भी हमारे ऊपर यही हालात गुजरा था। तो जब वहाँ पहुँचा तो तकरीबन 5 मिनट के बाद जो हमारा जो मुसाफिर हज़रात था वो होश में आ गया। तो मैं बीच में इधर ही खड़ा था, तो वो यहाँ सारे आके हमारे गले लगा, रोने शुरू किया। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ना होता तो हमारा क्या हाल होता। मैंने बोला कि नहीं, मेरा को छोड़ो, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करो, 2 रुका ना हो पड़े और ना हो पड़े, अल्लाह का शुक्रिया। इस दलेरी जवानमर्दी के एतराफ़ में चेयरमैन मोहम्मद इकबाल शिरानी इंटरनेशनल राइटर फोरम इस्लामाबाद ने बशीर अहमद साहब को शुजात के अवार्ड से नवाजा। और जनाब, हम क्यों पीछे रहें। FM 97 रेडियो की तरफ से बशीर अहमद साहब को हमने अपनी बसात के मुताबिक कैश प्राइज से नवाजा। यहाँ पे आए हैं और
खूबसूरत पार्टी रखी थी और खूबसूरत पार्टी हमने अरेंज किया था और बशीर साहब की खिदमत के एहतराम में जो शुजाअत का मुजाहिरा किया, जो दिलेरी का इन्होंने मुजाहिरा किया था 24 मार्च 2001 को, जो यहाँ से उड़ान बढ़ी थी जहाज़, और अल्लाह ने इनको एक वसीला बनाया कि उनकी वजह से 45 के करीब मुसाफिर कीमती जाने वो जो है एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गए थे। सो उनके एहतराम में हम कुछ ज़्यादा तो इनको पेश नहीं कर सकते, इनको तो मेरे ख्याल में करोड़ों के हिसाब से इनाम देना चाहिए, लेकिन हम अपने हॉट FM 97 रेडियो चैनल की तरफ से एक थोड़ी बहुत एक गिफ्ट हम अपनी तरफ से इन्हें पेश कर रहे हैं। आई होप कि बशीर साहब आप इन्हें कबूल करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। तो ये यहाँ के अवार्ड देने का मकसद ये था कि यहाँ हमने पार्टी रखी थी, तो हमने सोचा पार्टी के बाद ये इनाम आपको थमा दें। तो पीछे मारपोर है और नेशनल पार्क के एरिया में मौजूद है, इससे बढ़कर और खूबसूरत समा यहाँ पे हो ही नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू।